We have 25 odd days in hand right now for Christ University entrance test, and I wanted to give you a very, very clean strategy for it. Trust me, this particular session is going to give you sectional strategy. It's going to give you the overall strategy and also the rounds that you are going to face just after the entrance test. Stick till the end, a very crucial session for everyone who's preparing for Christ University and or simultaneously preparing for IPMET exams as well. So let's start with the overall strategy first. And before that, we need to discuss the exam pattern. So for all the BBA counterparts, you will have the entrance test in this particular pattern. I've directly taken it from their website. English 25 questions, 25 marks. GK 20 questions, 20 marks. Fundamental accounting 10 questions, 10 marks. Reasoning 25 questions. Mathematics 20 questions. Data analysis and interpretation 20 questions. 120 questions plus 1 marking minus 0.25 negative marking for incorrect answering. Please ensure that you're preparing for GK as well as fundamental accounting. These two are additional subjects over here, and I'm going to brief you how you need to prepare for them because they are going to be the game changers over here, particularly for that particular lot जो कि IPM related exams की preparation कर रहा है वो Christ University दे रही है. So these two sections are usually being missed by the students and that create ruckus later. ठीक है? एक और एग्जाम एक और स्पेशलाइजेशन दैट इज बीबीए डिसीजन साइंस एंड ओवर हियर द नंबर ऑफ sections are different, right? So English is 25 marks, GK is 20 marks, fundamental accounting over here is 10 marks, but reasoning is just of 13 marks. Unlike in previous section, it was 25 marks. Mathematics 10 marks, data analysis and interpretation 10 marks. Quantitative aptitude is a different section over here, 10 marks. Design thinking for problem solving is an additional subject over here of 10 marks. Pattern recognition becomes one more special subject over here that carries 12 marks. So you need to be more oriented towards data over here, and I'm going to give pro tips for the BBA decision science also in the coming slides. That's going to be really helpful for everyone. So I made a composite strategy first for everyone, for all the students who are actually aiming for all the BBA programs at Christ University. As we clearly saw that 120 questions, 90 minutes plus 1 minus 2.5 is the negative marking. 6 sections primarily for the BBA sections: English, Maths, Reasoning, GK, Data Interpretation, and Accounting. Level of difficulty is what tells you majorly how to prepare for it. It's going to be majorly easy. Somewhat moderate level of difficulty questions will also be added. So what is going to be the success formula? Clear and composite thing. You need to maintain speed along with accuracy. You just cannot rely on accuracy over here because it's an easy paper. Try and understand that. So speed plus accuracy plus section prioritization, because as I told you, there are two game changers over here. Fundamental accounting as well as GK, which wouldn't be prepared by majority of the students. And you're lucky ones who are watching this particular video because many of them even don't know that these two sections are going to land up eventually, right? Now, focus areas for data science aspirants: mathematics plus DI plus reasoning is going to be the focus area for them. So I'll always suggest you, now only 25 days in hand, if you haven't started yet, then keep this in priority. First to 7 days, all the fundamentals and concepts to be done with. And hoga kaise? Syllabi will be one time done for entire. In fact, इजीली सारे कंसेप्ट्स का एक रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा जो आईपीएम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे आप, एंड अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वन राउंड उससे कंप्लीट हो जाएगा, राइट? नाउ इन फेज 2 यू आर सपोज टू डू योर वीक एरियाज फिक्सिंग, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको वीक एरियाज दे देगा. जो फेज 1 है आपको वीक एरियाज दे देगा और उसी पे काम करना है आगे आने वाले 7 दिनों के लिए. एंड क्योंकि यहाँ पे वास्टनेस ऑफ सिलेबस है, सो इन 15 डेज में आप one round of syllabus completion कर चुके होंगे. That is going to be the great thing. Then third phase will be mock plus analysis, and after that polishing plus strategy. How you're going to go about it, let me tell you. So at least 4 to 5 mocks. Supercrats के Christ University entrance test के mocks are going to be really helpful for you over here. Okay, उनका analysis is really going to give you the things that you need to work on now. Polishing plus strategy should also involve 4 to 5 mocks at point of time, and you should have a clear-cut strategy based on your learnings of these 20 odd days to go ahead and for writing the examination. We'll be looking into the section-wise strategy. This will give you a clarity on this strategy completely as well. Okay. Now, strategy for English, that's composing maximum marks, specifically for BBA segment of students, 25 marks. So you read comprehension
रीडिंग कम्प्रीहेंशन शुड बी ऑफ द हायर वेटेज, बट इट्स नॉट गोइंग टू कंप्राइज इट टफर पैसेजेस। इसमें इजी पैसेजेस आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर स्पीड रीडिंग करें आप। सो स्पीड रीडिंग, ऐसे पैसेजेस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो जहां पर ऑथर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बता रहे। ओके, सो इजी पैसेजेस इज गोइंग टू बी योर शुड बी योर फोकस एरिया। ग्रामर में टेंसेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, इजी साइड ऑफ ग्रामर पूछी जाएगी। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेज एंड सेंटेंस करेक्शन। सो डेली रूटीन में भी अगर 15 मिनट्स की आरसी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे सोर्स से, उसके बाद 10 मिनट्स की वोकैबुलरी, आप अपने अपने जो बेसिक स्टडी मटेरियल, अगर आप सुपर क्रिटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप आपकी जो बेसिक स्टडी मटेरियल है उससे ही प्रैक्टिस करो। आरएसएम्स विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन ओवर हियर। 10 मिनट्स की वोकैब, रूट वर्ड्स प्लस हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मस्ट बी द फोकस। नहीं है कुछ मटेरियल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, देन एआई कैन बी रियली ग्रेट हेल्प। उनको बस आपको प्रॉम्प्ट देना है, मुझे रूट वर्ड्स दे दो, एंड they can be great help. So ChatGPT can really help you over here, or Gemini can really help you over here. 10 minutes grammar drill, that's essential. Lennon Martin उठा सकते हो, या RSMs are going to be real help over here, guys. Pro tips दे रहा हूँ कुछ, यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग फास्ट डेवलप करो। सो एक्यूरेसी से भी ज्यादा स्पीड का गेम है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी को मिक्स करना है हमको। यू नीड टू आंसर फास्टर ओवर हियर। प्रैक्टिस एलिमिनेशन मेथड। Elimination method can really help in papers like this. Eliminate कर रहे हो, नहीं ये नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर हो सकता, ये वाला ही होगा और ये ही आपको मदद करने वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस नहीं मिलने वाले, unlike IPMET examination. And adding long RC rereading can really so avoid the RC rereading. That practice you need to develop in coming 7 days, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी चीजें फेज 1 में फंडामेंटल्स के लिए। और ये आपका कंज्यूम कर रहा है एवरी डे टाइम, एज यू क्लियरली सॉ इन दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर आप हर दिन की प्रैक्टिस कर रहे हो, 45 मिनट भी ढंग से दे रहे हो, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्प। सो 35 मिनट्स से 45 मिनट्स आल्सो कैन बी अ गेम चेंजर ओवर हियर। नाउ स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स, एंड रियली इट नीड्स टाइम, सो मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम देने वाला हूँ। 25 to 30 फाउंडेशनल फॉर्मूलाज मैथमेटिकल स्ट्रेटजी हर दिन के होने चाहिए। टाइम ड्रिल्स होने चाहिए 20 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स की। लर्न शॉर्टकट्स फॉर रेशियो एंड परसेंटेजेस। फोकस टॉपिक्स इजी वाले अरिथमेटिक को सबसे ज्यादा फोकस में शुरुआत से रख देना, और अलजेब्रा को। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, majority of the things are done with. So percentages, ratios, profit and loss, algebra basics like linear equation simplification, number system, simple and compound interest, statistics for decision size H, statistics for decision science specific students. But make sure arithmetic and algebra should be the core focus, specifically arithmetic, number system. ये चीजें अगर आपने कर ली तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। इनफैक्ट इस पर बाद में प्रो भी हो जाओगे। Strengthen arithmetic plus basic statistics, maintain 85 to 90% accuracy threshold. प्लीज इसको भी चेक करो, स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो, और मेक श्योर थोड़ी कम कर सकते हो स्पीड, जैसे अगर आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी नहीं हो पा रही है तो ठीक है, बट स्पीड के साथ एक्यूरेसी वाला गेम है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रैक्टिस इज द की फोकस फॉर मैथमेटिक्स गाइस। देन जनरल नॉलेज, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू टच इट। और आपको जो एरियाज ये कवर कर लिया, आई कैन वाउच ऑन कि आप काफी हद तक पढ़ के जाओगे और काफी सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे पेपर में, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है ना, तुक्का मत मारना, अनलेस अंटिल थोड़ा भी आइडिया ना हो तो। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की तरफ एंड अप करोगे। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के टचअप करो, हर महीने के मेजर करंट अफेयर्स 6 महीने के करो। उसके बाद बिजनेस, इकोनॉमी एंड ब्रांड्स के पिछले 6 महीने की न्यूज पढ़ो। नेशनल प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स को देखो प्लीज गाइस। अवार्ड्स, समिट, स्पोर्ट्स, बेसिक पॉलिटी, ज्योग्राफी को जरूर चेक करो। मैप्स कैन बी रियल हेल्प। मैप्स बहुत मदद करते हैं, स्पेशलाइज्ड मैप्स जो करेंसी शो करे, जो आपको कैपिटल शो करे, जिनमें प्रेसिडेंट्स भी शो किए जाते हैं, ऐसे जो नए टाइप के मैप्स है ना, वो बहुत मदद कर देते हैं, वक्त बचा देते हैं क्योंकि, ठीक है। नॉट ओनली दैट, कौन सी रिवर कहां से जा रही है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, अरावली हिल्स कहां पे लोकेटेड है, ऑल दोस थिंग्स आर रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। 10 मिनट्स न्यूज समरी, वीकली जीके रिवीजन कैन बी रियल हेल्प। यूट्यूब वीडियोस, खासकर हमारे सिस्टर कंसर्न लीगल एज वीकली समरी वाले वीडियोस डाल रहा है एंड ऑल, वहां पर भी आप जाकर जरूर देख सकते हो, दैट दे कैन बी रियल हेल्प फॉर यू गाइस। प्रायोरिटाइज बिजनेस एंड टेक न्यूज फॉर डेटा साइंस गाइस। स्पेसिफिकली 1 पेज जीके शीट अपडेटेड वीकली, जो हर वीक की जीके शीट्स हैं, वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो आपको वीकली समरी वाले वीडियोस जरूर मदद करेंगे। फोकस ऑन एक्यूरेसी,
गेस वर्क किल्स स्कोर ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि आप यहाँ पे गेस वर्क ना करो तो अच्छा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। देन अकाउंटेंसी में ट्रस्ट मी 4 घंटे की भी अकाउंटेंसी ढंग से पढ़ के गए ना तो निकल सकता है। और यहीं पर गेम चेंजर इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं आते, खासकर वो वाले जो अकाउंट्स रिलेटेड स्टडी नहीं किए हुए हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है। सो इसकी वजह से बस फर्क आ जाता है और पता भी नहीं पड़ होता स्टूडेंट्स को कि अकाउंटेंसी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सो जनरल एंट्रीज बहुत सिंपल सिंपल जो 11th की अकाउंट्स पढ़ी थी ना, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट रूल्स, ये करके अप्रोच 12 कोर रूल्स, सॉल्व 50 क्वेश्चंस, लॉक दिस सेक्शन, बस और कुछ भी नहीं। सो इनफैक्ट सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक क्लासेस भी लगाते हैं, सो देयर विल बी क्लासेस ऑन दिस। हाई एक्यूरेसी सेक्शन है, पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। 5-6 घंटे की बस स्टडी करनी है एक साथ ताकि हो जाए और समझ लो सिंपल है। यूज 11th एनसीईआरटी बेसिक्स टू फोकस द स्टफ, नथिंग एल्स। ओके, देन स्ट्रेटजी फॉर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हाई स्कोरिंग सेक्शन है। प्लीज प्रैक्टिस करने से आपके नंबर नहीं छूटेंगे यहां पर। सो यू नो टेबल्स, लाइन ग्राफ्स, बार, बाय चार्ट्स, केस बेस्ड डेटा सेट्स और हाई स्कोरिंग स्कैन आइडेंटिटी, इजी सेट, सॉल्व इन ऑर्डर। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्कैन करना है, जो जो इजी लग रहा है सबसे पहले सॉल्व कर लो। और ये सेक्शन आपको बाहर से खड़ा कर देगा, ये नंबर जरूर देगा, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा कर लेते हैं। सो अगर यहां पे डिफिकल्टी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम आपको अलग से प्रो टिप्स भी देंगे। ठीक है, सो स्किप लॉन्ग कैलकुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हो और उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, डीआई इज योर पावर सेक्शन, टारगेट 80 to 90% एक्यूरेसी, तो एटलीस्ट इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 90% एक्यूरेसी टारगेट करो, 80 भी नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिस टेबल टू परसेंटेजेस कन्वर्जेंस डेली, ये हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकता है, नॉट ओनली फॉर डीए स्टूडेंट्स, बट टेबल टू परसेंटेज कन्वर्जन्स काफी हद तक मदद कर सकते हैं इजी सॉल्विंग में। स्पीड मैटर्स मोर देन थियरी, यस स्पीड पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम उतना नहीं है, तो स्पीड यहाँ पे जरूर मैटर करती है, बट साथ साथ एक्यूरेसी रिटेंशन भी बहुत मैटर करने वाला है। ठीक है, सो प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते हुए जाना, मुझे पॉज करते हुए वीडियो को, दिस इज गोइंग टू बी हेल्प। नाउ रीजनिंग भी बड़ा सेक्शन बनने वाला है। डेटा साइंस में तो 13 मार्क्स का, बट यहाँ पे 25 मार्क्स का है। सो की एरियाज वहां पर सिंपल चीजों को पढ़ना है अपने को, हमें क्लियरली गेस कर सकते हैं कि पेपर आसान आने वाला है। सो पेपर अगर आसान आने वाला है तो कौन कौन से की एरियाज होते हैं वहां पे, रिलेशंस आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, सीरीज सीक्वेंसेस आ जाएगा, डायरेक्शंस भर भर के आएंगे, सिलोजिज्म्स भी आ सकते हैं बट बहुत टफ वाले नहीं, आसान वाले। देन सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर वाली चीजों को चेक करना है, वेन डायग्राम्स, क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स। और अभी तक आईपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो भी अप्रोचेबल है, आसानी से करने वाली चीजें आने वाली है। तो लर्न टेम्पलेट्स, प्रैक्टिस 20 मिनट्स डेली, प्लीज प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस की हुई होगी तो स्पीड बनी रहेगी। ठीक है, सॉल्व अरेंजमेंट क्वेश्चंस लास्ट, टाइम कंज्यूमिंग है तो ये एक प्रो टिप है हमारी तरफ से। यूज एलिमिनेशन टू इंक्रीज एक्यूरेसी, यस एलिमिनेशन मेथड्स विल रियली हेल्प यू, खासकर इन सारे टॉपिक्स में एलिमिनेशन बहुत मदद करता है। मेंटेन अ रीजनिंग एरर लॉग, एरर लॉग को मेंटेन करो। एरर लॉग बनाने वाले स्टूडेंट्स देखो आप किस हद तक आगे बढ़ रहे हो, मतलब मैंने देखा है जितने स्टूडेंट्स कभी भी मॉक्स देते हैं, एरर लॉग्स बनाते हैं, उनको पता होता है कि यार मेरी गलती बार बार कहां हो रही है। सो जब भी पेपर मॉक सामने आता है ना दूसरा, तो तुरंत उनका कॉन्शियस ब्रेन खड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उनको बहुत मदद मिलती है। अगर अब तक नहीं कर रहे हो तो मदद, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा नॉट ओनली इन रीजनिंग, एवरीवेयर यू शुड हैव एरर लॉग विद यू। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन थियरी, गाइस प्लीज थियरी अब नहीं करना कुछ भी, है ना। कन्वर्ट वर्बल डेटा इनटू डायग्राम्स इंस्टेंटली, और ये डायग्राम्स बनाना डायरेक्शंस में बहुत मदद कर सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत मदद कर सकता है, ब्लड रिलेशंस में भी डायग्राम्स बनाना बहुत मदद कर सकता है। कन्वर्ट, स्किप लॉन्ग पजल्स अर्ली, रिटर्न लेटर, तो सिंपल सी बात है, रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है वो यूज करना बहुत जरूरी है कि भाई इस क्वेश्चन को बाद में देखता हूं, नहीं तो फिर लेकिन दिमाग को भूलने की आदत होती है, तो मार्क फॉर रिव्यू जरूर किया करो। ठीक है, कि बन सकता है मुझसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीबीए डिसीजन साइंस स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड अगर आप नहीं कर रहे हो आप तो भी मैं आपसे कहूंगा कि जरूर सुनो, अगर आप, क्योंकि क्या है यहां पे जो टिप्स दी गई हैं वो बीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो भैया एक सोने पे सुहागा वाली चीज है, बट जो डिसीजन साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो जरूर है करना। हायर वेटेज ऑन मैथ्स एंड डीआई थिंकिंग, इंपॉर्टेंट गाइस। प्रोग्राम रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव एनालिटिकल माइंडसेट, सिलेक्शन पैनल चेक्स योर डिसीजन रैशनल। सो क्या आप स्ट्रॉन्ग डेटा ओरिएंटेड पर्सन हो कि नहीं, ये देखा जाएगा क्लियरली।
So prioritize maths plus DI plus reasoning. That is something that is going to be really helpful for you. In fact, grip on percentages to ratio conversions can really help you guys. Interpretation of complex graphs can really help you. Quick statistics, mean, median, mode, derivation, basics can really help you. In fact, और pro tips में आपको दे रहा हूँ, read weekly analytics, DI, data ethics, business intelligence, everything. Highlight your maths and stats background in PI. That's going to be helpful for you all. In fact, data का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल PI में या फिर micro presentation and skill assessment में can really game change this stuff. Maths, DI are your differentiators. Really focus on them. ठीक है? Now, skill assessment, micro presentation. Problem ये है Christ University की कि it's not only an entrance examination or aptitude-based entrance examination. It will also test your writing skill sets. It's also going to test your communication skill sets. In fact, impromptu communication skill sets. So skill assessment is nothing but एक टेस्ट जो कि 13th या 14th ऑफ दिसंबर को लिया जाएगा. 7th को तो आप राइटिंग लिख के आओगे. वहां पर एक शॉर्ट रिटन टास्क, एक ऐसे राइटिंग का चीज आती है. ठीक है, यहां पर क्या चेक किया जाता है? आपकी लैंग्वेज क्लैरिटी, मतलब क्लीन लिख रहे हो कि नहीं. तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, अच्छे बनाओ. ये प्रो टिप दे रहा हूं. शॉर्ट एंड गुड सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंसेस मत लिखना. दूसरा, लॉजिक है कि नहीं बात में आपकी, और स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई है. बहुत सिंपल है. पहले इंडेक्स बना लो. जो भी लिख रहे हो ना उसका इंडेक्स बना लो और इंडेक्स के बेसिस पे लिखना. दिस कैन रियली हेल्प. टू स्ट्रक्चर कैन रियली मेक द थिंग्स वेल. एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है पील फॉर्मेट. पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल. पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड देन लिंक. इस चीज को अगर यूज करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा. एंड कीप द थिंग्स क्रिस्प. क्रिस्पनेस मतलब बहुत सिंपल सी बात है. लिखने की कोशिश करो. 3-4 टॉपिक्स ले लो. सिंपल. मैं तो बोलता हूं स्टार्ट करो काओ के ऊपर. आज के टाइम ऐसे लिख के दो. तो कितना स्ट्रांग ऐसे बना पा रहे हो काओ के ऊपर, उससे समझ में आ जाता है कि मेरी राइटिंग में कितना दम है. और उसी को फिर रिफ्रेम करके एक बार ये देखना कि जो मैंने लिखा है वो वर्थ इट है या नहीं है, कितनी वैल्यू ऐड करी मैंने. और ये फॉर्म जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात कर रहा था उसको यूज करके एक बार लिख के देखना. एंड रियली यू विल बी प्राउड ऑन योर, मतलब एक प्राइड आ जाएगा कि यार काऊ के ऊपर मैंने ऐसे लिखा. आज के टाइम, पहले हम KG1 फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखते थे, लेकिन आज इतने सालों बाद लिखने के बाद उसमें कितना दम है. ठीक है, चलो. आइडियल स्ट्रक्चर शुड बी फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन बात कर लेते हैं. यहां पर थिंकिंग टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसके ऊपर लॉन्ग वीडियोस भी बनाए हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो जरूर देखिएगा. थिंकिंग टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है माइक्रो प्रेजेंटेशन करने की. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है. बहुत अच्छा बोलने वाले स्टूडेंट्स भी बुरी तरीके से नेट में फंस जाते हैं. तो उनके लिए हुक, मैन पॉइंट्स, कंक्लूजन, फैक्ट प्लस स्टैटिस्टिक्स टू स्टैंड आउट इज ऑलवेज एन ऑप्शन. बट मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे वीडियोस को जरूर देखो, वो आपको पूरी टिप्स देंगे. कुछ प्रो टिप्स. अवॉइड कंट्रोवर्शियल एक्सट्रीम्स प्लीज गाइस. मतलब एक्सट्रीम साइड लेना नंबर काट सकता है. गिव एग्जांपल्स फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमी. लिंक टॉपिक्स टू डेटा एंड डिसीजंस एंड ट्रेंड्स फॉर DS एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली. रिकॉर्ड 10 वीडियोस रिकॉर्ड करो, प्रैक्टिस करो माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए. कुछ थीम्स ही ले लो एग्जाम्पल के लिए, इनके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस को. AI इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, data privacy in digital age, impact of automation on jobs. So this can be really big help for you. ये 3 होमवर्क ले लो इस पर्टिकुलर सेशन से. नेक्स्ट, इंटरव्यूज. कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, एकेडमिक रेडीनेस है कि नहीं है, कोर्स फिट है कि नहीं. स्पेशली डिसीजन साइंस वो चेक करेंगे. डेटा ओरिएंटेशन है कि नहीं है इस बंदे का. ठीक है. उसके बाद अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड प्लस बिजनेस, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी कितनी है. हालांकि इंटरव्यू भी बहुत आसान रहता है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे. बट यस, ये चीजें बैकएंड पे चेक की जाती हैं. आपका मतलब ये चीज याद रखिएगा कि इंटरव्यू के दिमाग में घुसकर ये चीजें पे जरूर काम करो गाइस. एंड कुछ मॉक इंटरव्यूज जरूर देना जाने से पहले. Basic questions. Tell me something about yourself. Why BBA? Why BBA decision science? Explain a situation where you use data to make a decision. Your strengths and weaknesses. Where do you read or follow? What do you read and follow regularly? जरूर प्लीज प्रिपेयर करो एंड मेक श्योर कि क्रिस्प, कन्फाइंड, लेकिन बहुत अच्छे आंसर्स आप इनके बना रहे हो. Strategy. Prepare a 90-second self-introduction. Use examples, not generic answers. Show awareness. Maintain a calm tone. टोन कैसे मेंटेन कर रहे हो. बॉडी लैंग्वेज को जरूर चेक करो. आई ऑलरेडी मेड सम वीडियोस ऑन स्ट्रेटजी ऑफ फेसिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज. इनफैक्ट बाद में भी अपन बनाएंगे, बट अभी से प्रैक्टिस करना जरूरी है. तो उन वीडियोस को जरूर, पुराने वालों को भी जरूर देख लेना. ठीक है.
सो दिस इज ऑल. ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके जाओगे, ना निकले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मेरा नाम करके रख देना. आई एम राहुल वासवानी, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू लव सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो अभी के अभी करो. और एक और चीज, इंस्टा को और पसंद करोगे हमारे, और टेलीग्राम को भी, तो सुपरक्रैट्स आईपीएम को सर्च करो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, एंड subscribe the telegram channel and follow Instagram as well. Thank you, thanks a lot.